Okay guys, so today topic of discussion is stability of resonating structure. In my previous lectures you have studied about resonance, how resonance take place, what is the condition of resonance, and a few points regarding the stability of resonance. Today we are going to discuss in brief about the stability of resonating structures. Okay, so make sure you note down all these points after the video. The first point, the first rule where you decide which structure is more stable in a canonical form, the first rule is that structure with more number of covalent bond, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, that is less charge separation, मतलब less polar, will be more stable. For example, consider this ketone. ऑक्सीजन अगर बराबर देखोगे तो it has two lone pairs on it. This is a sigma bond and a pi bond in case of a double bond. Oxygen is more electronegative than carbon atom. So suppose in a particular reaction this pi bond shifts on oxygen atom. अगर ये pi bond oxygen पे shift होगा, what will happen? This carbon will face an electron deficiency. So to minimize its electron deficiency, इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो इसकी डिफिशिएंसी को मिनिमाइज करने के लिए दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट हियर. When this electron pair shift here because of resonance, the pi bond get a structure CH3 CH single bond CH, okay, double bond C single bond O with 3 lone pairs and a negative charge CH3, और ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ है, तो बिकॉज ऑफ विच दिस कार्बन आटम विल फेस अ डिफिशिएंसी, and because of the deficiency बराबर देखो it makes only 3 bonds, 2 here and 1 with a hydrogen, so it will have a positive charge on it. Okay, so this is one of the resonating structure. So this is your first structure and this is your second structure of the molecule. If I want to decide which among them is more stable, so the rule says more number of covalent bond and less polar. If you see this structure is having more charge separation, माइनस और प्लस चार्ज आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, कैन यू सी दिस, बट ये स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, बट देयर इज़ नो चार्ज सेपरेशन. सो अकॉर्डिंग टू द रूल the first will be more stable than the second structure because it is having greater amount of covalency and less charge separation. Let's talk about the second rule. The second rule says that structure with more number of pi bonds or with a complete octet, that is the octet rule, is more stable. Now ये example देखो बराबर से. In this example there is a OH group attached to a cyclohexene ring where there is a formation of positive charge on this carbon atom. मतलब basically ये carbon atom एक कार्बोनियम आयन, कार्बोकटायन है. एंड इफ यू सी प्रॉपरली, अगर मैं यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन आटम बना दूँ, सो इट हैज़ 1 बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड एंड अ थर्ड बॉन्ड. जो 3 बॉन्ड मतलब इस कार्बन के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है. The octet is incomplete. Okay, if you check out this oxygen, it has 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons. ठीक है. Now what will happen? Because of the resonance, this carbon atom is sp2 hybridized. मैंने आपको बताया था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी रेजोनेंस के लेक्चर में, तो ये पाई बॉन्ड को पुल करेगा, इससे पैरेलल होता है p ऑर्बिटल के. सो व्हेन इट पुल्स, दिस कार्बन एटम विल फेस डिफिशिएंसी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके वजह से ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर्स को डोनेट करेगा. एंड यू रिमेंबर दिस OH ग्रुप इज कॉल्ड एज प्लस R ग्रुप. इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू द रिंग. सो नाउ यू हैव दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर OH डबल बॉन्ड रिंग, इस पे आ गया प्लस चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है. ओके, द बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. Now when this bond shift here, this carbon atom जिस पे हाइड्रोजन था, now it is converted into 2 2 and 2 and 2, total 8 electrons. Even this oxygen के पास एक लोन पेयर है, 2 more bonds तो 4 electrons, and यहाँ से 2 bond, तो इसका भी octet complete है. तो see properly, in this structure you have 2 pi bonds, okay, plus complete octet. In this structure you have 1 pi bond and incomplete octet. So according to the octet rule,
If I say this is a structure 1 and this is a structure 2, so structure 2 will be more stable as compared to structure 1 because it has more number of pi bonds in it. Okay, that is the octet rule भी इसमें follow हो रहा है. Now let us talk about the third point. The third point is that structure in which negative charge is on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom is more stable. जैसे ये एग्जाम्पल मैंने डाइजोमीथेन से लिया था, सी प्रॉपरली. इसके रेजोनेंस में इफ द इलेक्ट्रॉन गोज ऑन द नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन पे डिफिशियंसी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा एंड यू गेट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, एच सी एच डबल बॉन्ड एन. ओके, डबल बॉन्ड एन, ऑलरेडी यहाँ प्लस चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया तो यहाँ पर 2 लोन पेयर्स आ जाएंगे with a negative charge. Okay, that negative charge indicates this extra pair of electrons. So now if you see properly, structure in which negative charge is on more electronegative atom. अब इस स्ट्रक्चर में बराबर देखो, इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 2 और ये नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ पर बनाया है. नॉर्मली अगर मैं इसे नहीं बनाऊँ और अगर मैं इसे नहीं लिखता हूँ और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज डाल रहा हूँ विथ लोन पेयर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है. ओके, सो नाउ इफ यू सी प्रॉपर्ली, दिस कार्बन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, 2 एंड लोन पेयर्स के 2, द नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स. इफ यू सी दिस नाइट्रोजन, इट हैज 2 plus 2 and 2, 8. इवन दिस नाइट्रोजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यहाँ पर देखोगे तो अगेन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये 2 नेगेटिव चार्ज प्लस 2 and 2 कितने हुए, 8 नेगेटिव चार्ज. सबके ऑक्टेट कंप्लीट है. सो आई हैव टू डिसाइड कि विच वन इज मोर स्टेबल. सो आउट ऑफ दिस टू स्ट्रक्चर, इफ आई फॉलो द रूल दैट नेगेटिव चार्ज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो ये स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है कार्बन पे, पॉजिटिव दिख रहा है नाइट्रोजन. ये पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन का है वो सस्टेन है, बट हियर इन दिस केस यू सी अ नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम एंड नॉट ऑन द कार्बन एटम. तो इस केस में नेगेटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन. तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव है फर्स्ट स्ट्रक्चर में एंड सेकेंड स्ट्रक्चर पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस पे होगा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा स्टेबल होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, second will be more stable than first because negative charge is present on more electronegative atom. Okay, then let us talk about the fourth rule. Fourth rule says कि if there is a tie between octet and electronegativity rule, मतलब जो हम लोग ने अभी सेकेंड रूल डिस्कस किया था कंप्लीट ऑक्टेट, और थर्ड केस दैट नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर उसमें टाई हुआ तो टाई विल ऑलवेज ब्रोकन इन द फेवर ऑफ ऑक्टेट रूल. एग्जाम्पल देखो, फॉर्माइलियम आयन, इसके कार्बन में बराबर देखोगे इस आयन के तो 2 and 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, नाउ टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, लोन पेयर्स. सो व्हेन यू डोनेट लोन पेयर, वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी एच सी ट्रिपल बॉन्ड ओ on the lone pair and a plus charge. Now you see here in this case the plus charge is present on less electronegative atom. जो सही है वही होना चाहिए, और इस स्ट्रक्चर में द प्लस चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो नहीं होना चाहिए. बट बराबर देखोगे तो हियर इन दिस केस द कार्बन इज 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. हियर द कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड यानी 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इज कंप्लीट. सो इफ देर इज अ टाई कि विच वन आई नीड टू सिलेक्ट, तो द टाई इज ब्रोकन इन फेवर्स ऑफ ऑक्टेट रूल, कि भले ही किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो, बट इफ द ऑक्टेट इज कंप्लीट देन इट विल बी मोर स्टेबल. मतलब हियर इन दिस केस विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड एंड फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट. क्लियर है? वो केस आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा. सी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन इज सपोज टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बट हियर वी हैव कंप्लीट ऑक्टेट. यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, यहाँ भी कंप्लीट हुआ. दैट इज़ वाई हम लोग ने कंप्लीट ऑक्टेट को ज़्यादा फेवर किया एज कम्पेयर टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर with more conjugation. Conjugation is alternate single and double bond.
दैट इज मेकिंग मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, मतलब जहाँ पर ज़्यादा रेजोनेंस मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, दिस इज हेक्सा 135 ट्राईन. ओके, ट्राईन, हेक्सा ट्राईन 135. अब रेजोनेंस के हिसाब से दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट ऑन द कार्बन एटम ड्यूरिंग रिएक्शन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए कार्बन यहाँ शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट हियर. 3 टाइम रेजोनेंस, दे आर इन सीरीज. Okay, alternate single and double bond. But here in this case, if you see properly, if this pi bond shifts here, this carbon face electron deficiency. So for the neutralization ये carbon यहाँ पर shift होगा, but इसके लिए यहाँ कोई alternate double bond नहीं है, मतलब resonance system सिर्फ इधर ही है, यहाँ कहीं देखने को नहीं मिल रहा है. In spite of having three double bonds, the first structure will have more resonance as compared to the second structure, because यहाँ पर आपको 2 alternate single double के बाद तीसरा alternate single है ही नहीं. There is 2 single bond then a double bond. So ये pi bond यहाँ shift नहीं हो सकता. It can shift here, but there is no positive charge on this carbon. Positive charge present on this carbon atom. So here you have a resonance of 2 alternate double bonds. Here you have a resonance of 3. So more resonance, more conjugation, more stability. मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर में से फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड स्ट्रक्चर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रूल. द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6, it says if there is a tie in number of conjugated double bond then structure with aromaticity is more stable. जैसा अब ये हेक्साट्राइन में 3 डबल बॉन्ड्स है ऑल्टरनेट. ओके, 3 डबल बॉन्ड्स है, बट ये एक नॉन एरोमेटिक स्पीशी है. और बेंजीन सबसे फेमिलियर कंपाउंड, इसमें भी 3 ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, बट दिस कंपाउंड इज व्हाट, एरोमेटिक. तो अगर कंपाउंड एरोमेटिसिटी में आ गया in spite of having same number of conjugation, so that aromatic compound will be more stable as compared to non-aromatic. Okay, 7th, the structure with linear conjugation, straight chain is more stable than branch. जैसे ये स्ट्रक्चर हेक्साट्राइन, वंस अगेन देखो इसमें लीनियर कॉन्जुगेशन है एक ही लाइन में. बट अगर मैं ये ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ये भी ट्राइन है 3 डबल बॉन्ड, लेकिन ब्रांच है. तो ब्रांच है, देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, रेजोनेंस. और अगर ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से भी शिफ्ट हो सकता है. तो ये एक लीनियर रेजोनेंस है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है. दिस इज लीनियर. लीनियर कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द क्रॉस. So first and second structure में से first is more stable than the second. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्या लिखा है यहाँ पर? Among the following resonating structure of the formic acid HCOH, find the most stable and the least stable. Okay. Let's see the first structure. This is the first structure of formic acid. सबसे पहले ऑक्टेट रूल, सबके ऑक्टेट चेक करते हैं. देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो डुप्लेट होता है. कार्बन के लिए 1 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट. ऑक्सीजन 1 बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 लोन पेयर्स हो गए तो 8 हो गया. ऑक्टेट कंप्लीट है. ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड है, ज़्यादा पोलैरिटी भी नहीं है. यहाँ पर आपको पोलैरिटी भी दिखती है, चार्ज सेपरेशन भी दिखता है. और आपको पहला रूल याद होगा दैट कोवैलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, कोवैलेंट स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू पोलार स्ट्रक्चर्स. मतलब नॉन पोलार आर मोर स्टेबल देन पोलार. तो मतलब इन सब में से फर्स्ट तो ऑर्डर के अंदर सबसे पहले फर्स्ट आ ही जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल के हिसाब से सारे ऑक्टेट्स कार्बन ऑक्सीजन के कंप्लीट है. यहाँ पर भी 2 लोन पेयर्स होते हैं, प्लस मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड है, चार्ज सेपरेशन नहीं है. सेकेंड स्ट्रक्चर में बराबर से देखोगे तो दिस ऑक्सीजन ऑक्टेट इज कंप्लीट. कार्बन 1 2 3 एंड 4 ऑक्टेट इज कंप्लीट. ओके, ऑक्सीजन 1 2 3 एंड 4 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 बॉन्ड के हो गए, एक लोन पेयर होगा क्योंकि एक डोनेट किया होगा, कंप्लीट है. इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं. हियर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ऑन इट. ओके, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम. इट हैज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट. कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट कार्बन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. देखो 1
2 and 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मीन 6, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके ऊपर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट, प्लस इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है और उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, और रूल के हिसाब से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शुड कैरी नेगेटिव चार्ज। तो इन दिस टू स्ट्रक्चर द ऑक्टेट्स आर नॉट कंप्लीट, तो ऑब्वियसली ऑक्टेट रूल सबसे पहले फेवर होता है। एंड इन दिस स्ट्रक्चर 8 electrons, oxygen has 8 electrons, this oxygen has 8 electrons, मतलब octet is complete। तो जहाँ पर octet complete होता है that structure is more stable, तो हम लोगों ने फिर उसके बाद सेकेंड सेलेक्ट किया क्योंकि इसका octet complete है। ये फर्स्ट से कम स्टेबल क्यों है? बिकॉज में चार्ज सेपरेशन है, फर्स्ट में चार्ज सेपरेशन नहीं है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फोर्थ में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन थर्ड में नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वो तो नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल ये दिख रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, और दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके लिए थर्ड विल बी more stable than fourth. Got it? I hope everyone understood this. Thank you.